Today our topic is fertilization. Yesterday I taught you about menstrual cycle. So next we will study about fertilization. Now first I will tell you the definition of fertilization. Fertilization means the fusion of a haploid sperm. The fusion of a haploid sperm with a haploid ovum or egg to form a diploid zygote. To form a diploid zygote. This is what we called as fertilization. So fertilization in simple terms is the fusion of a haploid sperm. You know what do you mean by haploid? Haploid means containing only one set of chromosomes. Then when it fuses, when a sperm from a male fuses with a ovum from a female, this process is called as fertilization. The concept of fertilization was earlier known to a renowned biologist, microscopist, that's called Leeuwenhoek. Now, fertilization means the fusion of haploid sperm with a haploid ovum to form a diploid zygote. This is in simple terms what we call as fertilization. So what is the site of fertilization? Where does fertilization occur in? Human beings. As you know, in human beings the fertilization is internal. So this fertilization occurs in the fallopian tube of female. This occurs in the fallopian tube of female. Fallopian tube that is also called as oviduct. There is a junction in the fallopian tube that's called ampullary isthmic junction. So it's the actual location of fertilization. Usually in human beings, fertilization occurs at ampullary isthmic junction. That you already know. Fallopian tube. There are three parts of fallopian tube. First, it's having this infundibulum. Then it's having ampulla, and then there is isthmus. Then here's a junction where ampulla and isthmus meet. This junction is called ampullary isthmic junction. This is the site where actual fertilization occurs in human beings, in human females, inside the fallopian tube. So this is the site of fertilization. Now next, arrival of sperms. When sperms arrive, as you already know, during coitus means copulation. When copulation occurs between a male and a female in human beings, these sperms are deposited in the vagina of the female, usually near cervix. तो cervix के पास में vagina के अंदर जो है semen deposit होता है. Actually it's called semen. When semen is deposited, it is deposited near the cervix in the vagina of the female. Then this one ejaculation of semen in case of human beings, it contains some 300 to 400 million sperms. So when sperms are deposited inside the vagina of the female, they are deposited near the cervix, and one ejaculation of man, one ejaculation of semen contains about 300 to 400 million sperms. Then these sperms, when they are deposited inside the vagina, they start moving towards the eggs in the oviducts. Firstly, their movement is aided by the contractions of the female reproductive tract, usually by the contractions of the uterus and contractions of the fallopian tubes. Then in the fluid medium they also travel by themselves. Their
speed in the fluid medium is 1.5 to 2 mm per minute. In this speed, they start moving towards the egg in the oviduct, but all these sperms, among all these sperms, 300 to 400 million sperms, only some thousand sperms are able to find their way in the fallopian tubes of the females. Out of those thousands of sperms, only one sperm is able to fertilize the egg. One sperm is able to fertilize the egg. Now what happens to all other sperms? All other sperms are eaten by the leukocytes of the female reproductive tract. All other sperms, only one sperm attached with the egg, only one sperm fertilizes the egg, and rest of the sperms are discarded. Because in case of human beings, there is monospermy. What do you mean by monospermy? Only one sperm fuses with the egg and only one sperm enters the egg in case of human beings. So this is the arrival of sperms. Then I also told you the movement of sperms. Then there is arrival of secondary oocyte. Now fertilization can occur only when secondary oocyte, that means egg is present in the fallopian tube. If there is no egg, the sperms will not fuse with any egg and there will be no fertilization. Then there is arrival of secondary oocyte. Now why I'm talking here secondary oocyte, why not ovum? Because you know this secondary oocyte, this egg in case of human beings, in case of females, is released in secondary oocyte condition. It is released on 14th day of menstrual cycle. जैसे कल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 14th day of menstrual cycle में ये रिलीज होता है. But this egg at that time is called a secondary oocyte. It is released in secondary oocyte from the Graafian follicle. Graafian follicle के अंदर से ये एग रिलीज होता है 14th डे में, ओवरी से रिलीज होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है. अभी इसने अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया होता है, लेकिन इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो अभी मेटाफेज में ही अरेस्ट होता है. और इसके बाद जब इसका जो है स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज हो जाता है, तो ये अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू करता है. तो स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है इसी कंडीशन में, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में. सेकेंडरी oocyte कंडीशन में इसके साथ मिलता है, तो ये सेकेंडरी oocyte कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है. पहले जब ये ओवरी से निकलता है, पहले इसको जो है इन्फंडिब्यूलम की जो फिम्ब्रे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो इसको अपने अंदर पकड़ लेते हैं. उसके बाद उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शंस ऑफ दिस इन्फंडिब्यूलम, ये अंडा जो होता है, एग जो होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये फैलोपियन ट्यूब के उस पार्ट में आ जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है. तो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में रिलीज हो जाता है. देन one important process goes inside the female reproductive tract, that's called कैपेसिटेशन. उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स. असल में ये जो एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte कंडीशन में, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर फर्टिलाइज होना चाहिए, बिकॉज इट इज बेस्ट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स ओव्यूलेशन. देन इसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कैपेबल नहीं होते हैं इस कंडीशन में कि ये एग को जो है फर्टिलाइज कर सके. इससे पहले एक प्रोसेस इनके लिए जरूरी होता है, जिसको लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स. इट इज एक्चुअली एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स. अब इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक्टिवेट किए जाते हैं. They are made capable to fertilize the egg. Now, how they are made capable to fertilize the egg? There are some secretions
from the reproductive tract of female. Secretions from female reproductive tract. FRT here means female reproductive tract. These secretions are released by the female reproductive tract. और ये secretions क्या करते हैं? जैसे आप जानते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके पास हेड होता है, देन देयर इज नेक, देन देयर इज मिडिल पीस, देन देयर इज टेल. देन इस हेड के पास इसका एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोजोम. एक्रोजोम के अंदर इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये सिक्रीशंस क्या करते हैं, ये इस एक्रोजोम के ऊपर एक कोटिंग होती है या कुछ कोटिंग्स होते हैं स्पर्म के हेड के ऊपर. उन कोटिंग्स को ये सिक्रीशंस उन कोटिंग्स को क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उन कोटिंग्स को रिमूव करते हैं. रिमूव द स्पर्म कोटिंग्स. नाउ जब तक ये कोटिंग्स इसके पास है, स्पर्म्स के ऊपर है, तब तक ये कैपेबल नहीं है कि ये एग को फर्टिलाइज कर सके. अब जब ये कोटिंग्स हट जाती है with the help of the secretions, those secretions which are released by the female reproductive tract, अभी जब हट जाती है ये secretion, ये coatings, तो अब ये sperms capable हो जाते हैं कि ये इस egg को जो है secondary oocyte को जो है fertilize कर सके. इस process को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम capacitation of sperms. The process called capacitation of sperms. Now capacitated sperms are now present in the female reproductive tract, and now if the egg is present there, they are going to fertilize the egg. Next we will talk about the physical and chemical events which took place during fertilization. So these capacitated sperms are present there. Now these capacitated sperms will fuse with this egg and fertilization will occur. But there are some events which are collectively called as physical and chemical events. What are these events? Let us study next. Now, physical and chemical events during fertilization. This is an important topic. This will come definitely in your examination. Physical and chemical events during fertilization. There is first event that's called the acrosomal reaction. Now, what is this acrosomal reaction? Now, as I already told you, when a sperm came in contact with the secondary oocyte, there is its region that's called acrosome. It is the anterior part of sperm that is attached with its head, attached with its nucleus. Now, the capacitated sperm, when it comes in contact with the secondary oocyte, as you already know, this secondary oocyte, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. इसके बाहर से एक जो है सेल्यूलर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा. इसके अंदर एक और नॉन सेल्यूलर कोटिंग होती है कोरोना रेडिएटा के नीचे जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा. देन उसके बाद इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट होता है. अब जब कैपेसिटेशन हो जाती है स्पर्म्स की, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसके बाद क्या हो जाता है, वो इन कंटैक्ट आ जाते हैं सेकेंडरी oocyte. जब वो इसके साथ कंटैक्ट बना लेते हैं इस सेकेंडरी oocyte के साथ, तो इस स्पर्म का क्या हो जाता है, जो स्पर्म इसके साथ कंटैक्ट में आ जाता है उसकी एक रिएक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक्रोसोम का जो कवर जो होता है, एक्रोसोम कवरिंग ब्रेक हो जाती है, वो एक्रोसोम टूट जाता है और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं. आपको ऑलरेडी पता है एक्रोसोम के अंदर जो होते हैं इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उन एंजाइम्स को हम यूजुअली स्पर्म लाइजेंस कहते हैं. नाउ दी स्पर्म लाइजेंस, ये जो स्पर्म लाइजेंस होते हैं ये एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है. स्पर्म लाइजेंस जो होते हैं इसमें
मेन स्पर्म जो होते हैं, पहला होता है हाइलुरोनिडेज, दूसरा इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है ज़ोनालाइसिन। ये जो हाइलुरोनिडेज होता है, ये जो फॉलिकल सेल्स सराउंड करती है इस सेकेंडरी ओसाइट को, उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मेनली उस पर एक्ट करता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करता है। देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, जो बाहर वाला लेयर होता है सेकेंडरी ओसाइट का, जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ये उस कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम होता है। और ज़ोनालाइसिन, ये एंजाइम जो होता है ये ज़ोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करता है। इट डिसॉल्व्स द ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा आप जानते हो सबसे अंदर वाला जो कवरिंग एग का प्रेजेंट होता है, नॉन सेल्यूलर कवरिंग, तो ये इसको डिसॉल्व करता है। तो ठीक है, तो कैपेसिटेटिव स्पर्म जो होते हैं इनका एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, तो ये अपने एंजाइम्स बाहर निकालते हैं, ये एंजाइम्स इस एग के मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करते हैं, तो ताकि जो स्पर्म के अंदर कंटेंट्स है, कंटेंट्स का मतलब है स्पर्म के अंदर मेनली जो चीज होती है क्रोमोसोम्स होते हैं, ताकि वो एंटर हो जाए एग के अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और ताकि एग के क्रोमोसोम्स और स्पर्म के क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स हो जाए, पेयरिंग करें, और इससे जो क्या होगा डिप्लॉयड नंबर उसमें मेंटेन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसीलिए ये जो है एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती है। इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, इसके लिए प्रेजेंस ऑफ Ca डबल पॉजिटिव एंड Mg डबल पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, एंड इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए। कम या ज्यादा टेम्परेचर नहीं, कम या ज्यादा पीएच नहीं, एक ऑप्टिमम पीएच, और कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम Ca डबल पॉजिटिव फर्टिलाइजेशन कैन नॉट ऑकर। अगर कैल्शियम नहीं है, Ca डबल पॉजिटिव नहीं है, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है। सो दिस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, you can be asked about that, so you can say you should remember that in absence of calcium there can be no fertilization. तो एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद अब क्या होता है, अब एक्रोसोमल रिएक्शन जब होती है, जब ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व होते हैं, कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेल्यूसिडा, अब स्पर्म का मेम्ब्रेन जो होता है, द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्स इन कांटेक्ट विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज यहां पर आप समझना, ये इसका एक्चुअल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अपना सेल कवरिंग होता है। इसके अलावा भी इसकी दो कवरिंग होती है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब इस एग का मेम्ब्रेन जो है वो स्पर्म के मेम्ब्रेन के साथ कंटैक्ट में आ जाता है। तो जब ये कंटैक्ट के साथ आ जाता है, दिस कॉजेस डिपोलराइजेशन। इससे क्या हो जाता है, ये डिपोलराइज होता है ये एग का मेम्ब्रेन, डिपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। डिपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि इसकी चार्ज जो है उसमें चेंज हो जाती है, डिपोलराइज हो जाता है ये। अब डिपोलराइजेशन का फायदा क्या होता है कि डिपोलराइज होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दूसरा स्पर्म जो है एंटर नहीं हो सकता, सिर्फ यही स्पर्म एंटर हो सकता है। तो दिस डिपोलराइजेशन ऑफ दिस एग मेम्ब्रेन एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। जैसे आपको पहले ही मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स के अंदर मोनोस्पर्मी होती है। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है एक ही स्पर्म एग के साथ जो है फ्यूज हो जाता है। तो दिस एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। देन दिस वन मोर रिएक्शन इवेंट दैट्स कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा कॉर्टिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। जैसे आप जानते हैं एग के बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। इसके अराउंड अंदर अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब एग का मेम्ब्रेन स्पर्म का मेम्ब्रेन एग के मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, अब यहां पर क्या हो जाता है,
ये जो एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ऊपर आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये रिलीज करते हैं अपने एंजाइम्स जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है केमिकल्स यहां पर ये रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स छोड़ने के बाद अब यहां पर क्या हो जाता है, ये केमिकल्स जब जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आ जाते हैं तो ये जोना पेलिसिडा को हॉर्ड कर देते हैं, इसको हॉर्डिंग कर देते हैं ताकि कोई और स्पर्म जो है इसको जो है डिसॉल्व ना कर सके। तो इससे भी क्या हो जाता है, इट आल्सो एंश्योर्स मोनोस्पर्मी। सो both these conditions, depolarization of plasma membrane of egg as well as this cortical reaction, this ensures that only one sperm should enter inside the egg. That's called monospermy. This is cortical reaction. Then what happens, the sperm enters, the sperm contents, actually the sperm enters into the cytoplasm of the egg. अब स्पर्म जो है जहां पर ये एग के साथ कांटेक्ट बनाता है वहां पर एग इसके लिए कोन जैसा बनाता है, उसको कहते हैं हम जोन ऑफ रिसेप्शन, या आप कह सकते हैं सीधे कोन ऑफ रिसेप्शन, यानी जहां पर इसको रिसीव करता है, कोन ऑफ रिसेप्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। तो यहां पर क्या हो जाता है, स्पर्म पूरी तरह से एग के अंदर चला जाता है, यूजुअली इसका हेड और इसका नेक पीस अंदर चला जाता है। इसके अंदर एक सेंट्रियोल होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जब स्पर्म इसके अंदर चला जाता है तो ये डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, दो बन जाते हैं इसके, बिकॉज एग का अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, क्योंकि एग को फर्टिलाइज होने के बाद क्लीवेज में चला जाना है, डिविजन्स में चला जाना है। ये डिविजन्स में इसको माइटोटिक स्पिंडल की जरूरत पड़ती है, वो डिस्टल सेंट्रियोल ही इसको प्रोवाइड करता है, माइटोटिक स्पिंडल, वो आप समझते हैं। ठीक है, अब लास्ट इवेंट क्या हो जाता है, लास्ट में हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैरियोगैमी और एम्फिमिक्सिस। दिस इज द लास्ट इवेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस कैरियोगैमी और एम्फिमिक्सिस, व्हेन द स्पर्म कंटेंट्स, when the sperm contents, actually when sperm fuses with the egg completes its second meiotic division. Then this egg is now called fertilized ovum. It's called ovum, and this ovum is formed as well as second polar body is formed after completion of second meiotic division. That polar body comes out, that is discarded, and this ovum then it contains its nucleus, and it's a well developed cell at that time, formed after the second meiotic division, and inside its nucleus it contains its haploid number of chromosomes. Then this polar body is discarded and sperm head and neck enters into the egg, and its tail and middle piece that is also cutted and discarded. Then what happens, this nucleus of this ovum is called female pronucleus. Now it's called female pronucleus, and the nucleus of the sperm is called male pronucleus. Now what happens, this female pronucleus and male pronucleus, these fuse together, but first यहां पर क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इनके टूट जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स ऑफ ओवम जो है वो स्पर्म के क्रोमोसोम्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। इससे जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर एंश्योर हो जाता है, और इनके मिलने को ही हम कहते हैं एम्फिमिक्सिस, या जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। तो इस तरह से स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवम के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पूरी तरह से आके दो होमोलॉगस पेयर्स बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम नंबर को एंश्योर करते हैं। इससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और अब क्या हो जाता है, ये एग जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, पूरे एक्टिवेट हो जाता है अपने दूसरे डेवलपमेंट की स्टेज में चले जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं, क्लीवेज। ये उसके लिए तैयार हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अगली डेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाता है। अब इस एग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फर्टिलाइज्ड
एग एंड फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट, इसको हम जाइगोट कहते हैं। तो इसका मतलब जब स्पर्म और एग के कंटेंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड एंश्योर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम, इस सेल को हम अब डिप्लॉयड जाइगोट कहते हैं। तो इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, द मदर इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। अब माना जाता है शी इज नाउ प्रेग्नेंट एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल 9 months तो शी रिमेन्स प्रेग्नेंट और एक बच्चा जो है इस जाइगोट से फिर डेवलप हो जाता है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट अप टू ब्लास्टोसिस्ट। कैसे जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो हम कल पढ़ेंगे, और इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है।